now we are starting the fourth unit, that is your polar and Nyquist criteria and board plot. Basically it's a frequency response analysis techniques, जिसमें हम बोर्ड प्लॉट यूज करेंगे. वी आर यूजिंग पोलर प्लॉट, वी आर यूजिंग Nyquist criteria to find the stability of the system. As in third unit, we are finding the stability of the system in time domain or S plane, S domain. The S plane is refers to the time domain only. ठीक है? That is only the Laplace transformation of the time domain. So in this particular unit, we are focusing on the frequency response analysis, where we have to find the stability only, as we are finding in this unit 3. जैसे unit 3 में हमने देखा था कि root locus का use करके we are finding the value of k, for that the system is stable. And इसमें we are finding the values of frequencies at which the system is stable, at which range of the for which range of the frequencies the system is stable or not. ठीक है? So for this, what we are doing, we are using Nyquist and polar plot initially, and then board plot. So what is a Nyquist plot? A Nyquist plot is basically, कौन आया है? Okay, निशांत. Time चला कभी निशांत. तो Nyquist plot is basically a frequency plot. It is invented by the Nyquist, and the Nyquist and polar plot are the way of showing frequency response of linear system. लीनियर सिस्टम्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शो करने के लिए. दैट मीन्स जैसे आप एस प्लेन में आपको याद हो, देयर इज ए ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम in the S plane. Here we are drawing the graph with respect to the frequency. That means your x-axis is the frequency axis, and the graph is drawn uh, for its angle and its magnitude. For जहाँ भी frequency responses की बात होती है, जहाँ भी j omega आता है, then we can divide that particular transfer function in two parts, in magnitude part and the in angle part. A complex number can be in divided in the magnitude part or in angle part. कौन आया था? चलो. Okay, so Nyquist and polar plot are the plots which are drawn in frequency response. There are several ways of displaying the frequency response data, like board plot, polar plot, and Nyquist plot. And you can also draw, and you can also find the stability using the Nyquist and board plot. Board plot are the frequency response as horizontal axis, and that means your x-axis is having the frequency, and two separate plots are drawn for amplitude, or we can say magnitude, and the phase of the frequency response. दो प्लॉट ड्रॉ होते हैं इसमें. वन प्लॉट इज फॉर एम्पलीट्यूड, वन प्लॉट इज फॉर योर frequency response, and your x-axis is referred to the frequency of the system. जैसे वहां पे x-axis जो refer होती है, that is the time of the system, the time domain of the system. Here we are using the frequency of the system. Polar and Nyquist plot display the amplitude and phase angle on a single plot. बोर्ड प्लॉट में और पोलर और Nyquist प्लॉट में एक ही डिफरेंस है. बोर्ड प्लॉट में फ्रीक्वेंसी और फेज और एम्पलीट्यूड का अलग अलग ग्राफ होता है, दो ग्राफ होते हैं. पोलर और Nyquist प्लॉट में आपका एक ही ग्राफ होता है, उसी में एम्पलीट्यूड और फेज एंगल दोनों डिस्प्ले होते हैं. ठीक है? इनमें से पोलर और Nyquist में से Nyquist प्लॉट्स हैव प्रॉपर्टी दैट अलाउ यू टू सी वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. ठीक है? Nyquist प्लॉट का आप यूज करते हो फाइंड करने के लिए कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है. दैट मीन्स योर बोर्ड प्लॉट का और Nyquist प्लॉट का हम यूज करते हैं स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए. पोलर प्लॉट जो है एक तीसरा प्लॉट है, उसका यूज हम करते हैं टू ड्रॉ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम का रिस्पॉन्स खाली देखने के लिए. यू कैन नॉट फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, but you can find the magnitude, phase at a particular frequency.
बाय यूजिंग दी पोलर प्लॉट। अगर आपसे वो कहता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है, उस पे आप उसका मैग्नीट्यूड या फेज बताओ और पोलर प्लॉट दिया है, देन यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ दैट सिस्टम, बट यू कैन नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी यूजिंग द पोलर प्लॉट। ठीक है, सो नाउ Nyquist plot. So in Nyquist plot is a polar plot of the frequency response function of linear system. That means in Nyquist plot is a plot of transfer function Gs at s equals to j omega. To convert the S domain transfer function Gs in the frequency response or frequency domain, you have to put s equals to j omega in the system, in the transfer function. Then you will find a function g j omega, which is the transfer function of the system in frequency domain, तो खाली इतना कन्वर्जन हमें आप करना होता है शुरू में, s equals to j omega रख के, we have to find the g j omega which gives the transfer function of the system in frequency domain. ठीक है, then after that g j omega is a complex number, j की फॉर्म में है, of an angular frequency omega, so the polar is a plot of complex numbers. So polar और Nyquist plot जो है वो complex number के plot होते हैं। ठीक है, these all are theory which you need to understand. ड्रॉ करने के मेथड अलग है। ठीक, सो आपको क्या करना है, फॉर टू ड्रॉ द Nyquist बोर्ड प्लॉट और पोलर प्लॉट, इस पूरी यूनिट में लिए आपको जीएस जो आपको दिया हुआ है उसमें s इक्वल्स टू j ओमेगा रख के उसको g j ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया है फॉरवर्ड पाथ का, आपको कहा है द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय 100 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 1 लाइक दिस। ठीक है, फॉर दिस यू, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है फॉर दिस फंक्शन, यू हैव टू पुट s इक्वल्स टू j ओमेगा, सो योर ट्रांसफर फंक्शन विल बी कन्वर्टेड लाइक, इसे s स्क्वायर कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो दिस विल बी योर j ओमेगा होल स्क्वायर, j ओमेगा प्लस 2 j ओमेगा प्लस 1 j omega plus 1. So this is the frequency domain conversion of the transfer function. ठीक है, इसी फंक्शन को मैं इस तरह से यहाँ नीचे भी लिख सकता हूँ, आप यहाँ देखें, दिस फंक्शन कैन बी रिटर्न एज जी जे ओमेगा कैन बी रिटर्न एज 100, ये जो जे ओमेगा स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जे स्क्वायर का हो जाएगा आपका -1, तो अगेन जे ओमेगा प्लस 2 j omega into j omega plus 1. So this is your frequency domain conversion of the transfer function. ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक सबको, एवरीवन यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है, चलो, सो आफ्टर दैट हाउ टू स्केच दी पोलर प्लॉट, पहले हम पोलर प्लॉट स्केच करना सीखेंगे, खाली इसके आज मेथड देखते हैं, विल ड्रॉ ए स्मॉल प्लॉट और देन उसके थोड़े से अच्छे से प्लॉट करेंगे। दिस इज ए बिट इजियर देन रूट लोकस, रूट लोकस की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती थी, ये उससे ज्यादा इजी है। पोलर प्लॉट और Nyquist प्लॉट इज ए बिट इजियर देन योर रूट लोकस कैलकुलेशन। ठीक है, तो फॉर दैट to sketch the polar plot of g j omega of entire range of frequency, ठीक है, that is from 0 to infinite frequency range है, there are 4 key points that you will need to know. जो polar plot start होगा, the plot starts from omega equals to 0, the plot ends at omega equals to infinite. ठीक है, where the plot crosses the real axis को ये कहाँ कट करेगा, अगर ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है अगेन, ठीक है, ये मेरी रियल एक्सिस है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 मेरा हमेशा यहाँ होगा, दीज आर द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 इज दिस, और ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट एट
either at this, either at this, either at this axis, either at this axis. This is omega is equals to infinite. ठीक है. अगेन मैग्नीट्यूड जो होगा, ध्यान से सुनते रहो आप इसका, मैग्नीट्यूड जो होगा, जो मैग्नीट्यूड 0 होगा, मैग्नीट्यूड दैट इज ऑन ओरिजिन, एंड अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव, दैट मींस योर नेगेटिव रियल है तो इधर होगा, नेगेटिव आपका पॉजिटिव रियल है तो मैग्नीट्यूड इस तरफ मूव करेगा. ठीक. एंगल, अगर मैं एंगल की बात करूं तो योर दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, दिस इज योर 180 डिग्री एंगल. माइनस 90 की बात करूं तो दैट इज माइनस 90 एंगल इज दिस डाउनवर्ड्स. माइनस 180 डिग्री के एंगल की बात करूं तो माइनस 180 डिग्री एंगल इज दिस. माइनस 270 की बात करूं तो वो ये है, माइनस 270 ऊपर की. माइनस 270 डिग्री एंगल इज अप ऑन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. 90 डिग्री एंगल की बात करूंगा तो 90 डिग्री एंगल इज फ्रॉम एट दिस एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्सिस दिखाएगा कि ये पॉजिटिव है इधर की तरफ. ठीक है. सो अगेन जो लास्ट पॉइंट हम देख रहे थे कि अगर वेयर द प्लॉट क्रॉसेस द रियल एक्सिस, प्लॉट रियल एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा. कोई भी ग्राफ है, ये अगेन मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, कोई भी ग्राफ अगर आप बना रहे हो, वो अगर ये इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, एक फंक्शन है जिसका आप ग्राफ बना रहे हो, वो अगर रियल एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, दैट मीन्स उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो होगा उस समय. ठीक है. ये इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है उसका. सो प्लॉट रियल एक्सिस को कट करेगा जहां पे इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो करेंगे. कैसे करेंगे? अगेन दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ये हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाया था, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे. ठीक है. जैसे आप पहले करते थे, 12th के क्वेश्चन होते थे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग करो. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपको दिया 10 अपॉन, मैं इजी एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 प्लस जे ओमेगा. ठीक है. 10 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा. दिस इज ए फंक्शन विच इज गिवन टू यू. ठीक है. अब आपको इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है. तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप कैसे अलग अलग करेंगे इसका? एनीवन? 10 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आपको दिया है, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना है. क्या तरीका होता था करने का? यस यस. यस एनीवन, क्या तरीका होता था? अरे यार तुम लोग मैथमेटिक्स वेरी बैड. इसको हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर से डिवाइड, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. बल 1 माइनस, बिल्कुल सही, राइट. 1 माइनस, किसने बताया, कौन था, क्या नाम है यार तुम्हारा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ओके उज्जवल. ओके उज्जवल, राइट. उज्जवल बिल्कुल सही है. इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी लाइक 10. ऊपर अगर मैं देखूं तो 10 माइनस 10 जे ओमेगा ऊपर आ जाएगा. ठीक है. डिवाइड बाय, ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस जे स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो जे स्क्वायर का अगेन माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग अलग हुआ? ये 10 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका रियल पार्ट हो गया, माइनस 10 जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया. तो ये इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होता है. अब हमें ये करना है कि ये जो फंक्शन है जी जे ओमेगा, ये रियल इमेजिनरी एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है, रियल एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है. तो जब रियल एक्सिस को क्रॉस करेगा तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, इसको जीरो पुट करके ओमेगा की वैल्यू निकलाएगी, वहां पे ये इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस को कट करेगा. और चौथा पॉइंट है वेयर द प्लॉट क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस. ये कैसे निकालेंगे? जब इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा, जब इस इमेज, लेट मी चेंज द कलर, जब इस इमेजिनरी एक्सिस को कहीं क्रॉस करेगा तब आप उसका रियल पार्ट इक्वल्स टू जीरो कर देंगे. तो ये दिस इक्वल्स टू जीरो, वहां पे आप ये आपका इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा. जब यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी, उस ओमेगा की वैल्यू पे ये इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा. ठीक है. तो इस 4 पॉइंट है बस कि आप ऐसे
ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड निकालो, रियल एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस को कट कर कहाँ कर रहा है, ये निकालना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा ये ग्राफ देखते हैं ना, दिस यही जो हमने देखा था, ड्रॉ द पोलर प्लॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यू फॉरगेट कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, आपको एक फंक्शन दिया है g इक्वल्स टू 1/1 प्लस st। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ द पोलर प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन। इसके लिए आपने s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट कर दिया, कन्वर्ट इट इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, देन इसका मैग्नीट्यूड निकाला। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका मॉड कर देंगे, तो मॉड दैट मींस इट विल गिव यू 1 अपॉन, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम, ये जो मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। ठीक है, देन इसका फेज निकालेंगे, तो फेज कैसे निकलते हैं, फेज इज इक्वल्स टू योर माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी। फेज निकलता कैसे, मैं आपको याद दिलाऊं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, मैं लेट्स से 1 नहीं, लेट्स से यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी जे, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका फेजर एंगल होता है दैट इज योर tan इनवर्स b बाय a, tan इनवर्स b बाय a, तो दिस इज द फेजर एंगल ऑफ फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यही अगर मैं इसे 1 अपॉन, इसे मैं लिख दूं 1 अपॉन a प्लस बी जे, तो डिफरेंस खाली ये आता है कि इसका फेजर एंगल जो होता है दैट इज योर माइनस टेन इनवर्स b बाय ए, माइनस टेन इनवर्स b बाय ए। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। सो तो फेजर एंगल जो है इसका निकल के आएगा, द फेजर एंगल विल बी, इसको मैं 10 की फॉर्म में लिखता हूँ, कलर चेंज करना, तो इसको मैं 10 की फॉर्म में लिखता हूँ, इट इज माइनस टेन इनवर्स, इस पर्टिकुलर का फेजर एंगल निकाल रहा हूँ मैं, ये जी जे ओमेगा का माइनस टेन इनवर्स, अब ऊपर तो 1 है, ऊपर तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो इसका एंगल 0 हो जाएगा, नीचे एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो दिस विल बी योर माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी डिवाइड बाय 1, तो दैट विल बी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी। ठीक है, जो ये लिखा हो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज जिसमें लिखा हुआ है, तो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी इज द एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो अभी के लिए आपको खाली इतना ही समझना है, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ अभी आप खाली इतना देखो कि ये एक फंक्शन दिया था आपको, आपने इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया, उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज एंगल निकाला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकाला है आपने खाली। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, आपको उसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकाल के देखना। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, जी एस, एक फंक्शन दिया, मतलब जी एस इक्वल्स टू 10 अपॉन एस प्लस 3। ठीक है, इसका आपको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकालना है। सबको दिख रहा है ये 10 अपॉन एस प्लस 3, ये आपको करके देखना, खाली मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकालना है, दैट मींस दिस मैग्नीट्यूड और दिस फेज एंगल, ये जो मैंने निकाला 10 इनवर्स की फॉर्म में, ये आपको करके रखना है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको मैग्नीट्यूड फेज एंगल निकालना नहीं आया तो नहीं कर पाओगे, अदरवाइज अगर आपने ये सीख लिया, इसके आगे बहुत आसान है, ड्रॉ करने के लिए खाली 2 स्टेप और बचे हैं बस। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द फेजर एंगल। ठीक है, यस एवरीवन, हो जाएगा।